अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a layer at varying heights. This ozone layer has higher concentration of ozone. In the troposphere, its concentration is very low, but in the ozonosphere, its concentration is very high. This ozonosphere are the layer, the atmospheric layer enveloped by ozone, covered by ozone, is called as ozone layer, is called as stratospheric ozone, stratospheric ozone, or ozone umbrella, ozone umbrella, और प्रोटेक्टिव ओजोन। बेटा जहां पे हम अर्थ जहां पे हम रहते हैं दैट इज अ ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ये ओजोन पाया जाता है, लेकिन ऊपर एक लेयर है अबाउट 50 किलोमीटर्स, कहीं पे 20 to 40 किलोमीटर्स पे एक लेयर आती है जिसमें बहुत ज्यादा ओजोन होता है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर। और इसी लेयर को क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। Thickness of ozone is measured in Dobson units. Thickness of ozone is measured in Dobson units. Dobson units में मेजर किया जाता है। Unlike other constituents, unlike other pollutants, which are measured in ppm, जितने भी pollutants हैं वो हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन से, लेकिन सिर्फ ओजोन जो है वो हम शाबाश मेजर करते हैं डॉब्सन यूनिट से। बेटा क्यों इसको डॉब्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है? आफ्टर जी.एम. डॉब्सन, जी.एम. डॉब्सन साइंटिस्ट का नाम था, इन 1923 हु फर्स्ट मेड द ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या इसने बनाया? ओजोन photometer, a standard instrument used to measure the thickness of ozone. बेटा अच्छे सारे pollutants मेजर करन ppm से, मगर अच्छे ओजोन मेजर करन डॉब्सन यूनिटों से। तिकाज या सोस 1923 में जीएम डॉब्सन ये एक इंस्ट्रूमेंट बनो यत नाव छ ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the thickness of ozone. यस इस्तेमाल छ गसन केम खातिर? in order to measure the thickness of ozone. शाबाश। बेटा यम साथ इस ये ओजोन लेयर छ वुचन बेटा दबन युस हसा इस ट्रोपोस्फियर छ येतन इस रोजन छ इन द ट्रोपोस्फियर फॉर एवरी 100 million molecules, और एवरी 100 million molecules। बेटा अगर इस अर्थस पे वुचो कित्या 100 million molecules, if we see 100 million molecules on earth, for every 100 million molecules about 35 are on an average ozone। इनमें से शाबाश कितने होंगे ओजोन के मॉलिक्यूल्स? 35 इस अर्थ पे। और बेटा मैं अभी कह रहा था डॉब्सन यूनिट, ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। 1 डॉब्सन यूनिट इज इक्वल टू 1.69 into 10 raised power 16 centimeter square molecules of ozone per centimeter square, molecules of ozone per centimeter square। 1 Dobson unit is equal to 1.69 into 10 raised power 16 molecules of ozone per centimeter square, per centimeter square। शाबाश। बेटा ये जो ओजोन है, if all the ozone in the tropo and stratosphere, in the tropo and ozonosphere is brought down, बेटा अगर ये सोरे ओजोनोस्फीयर, इस ओजोनोस्फीयरस पे यूता ओजोन छु बे यथ लेयर पे अगर के छु बे यस अर्थस पे यीचा हंति छि अस ये सराउंडिंग ट्रोपोस्फीयरस मज, if all the ozone
in the tropo and ozonosphere is brought down. दबन अगर हसा सोरे ओजोन वालो बोन चाहे ओजोन लेयर पे या यत सान लेयर पे ट्रोपोस्फीयर यतन रोजन अतन दबन इफ इट इज ब्रॉट डाउन अगर हसा बोन अनो बोन वालो and distributed uniformly over the earth over the globe तम पत करो यत अर्थस पे uniformly distribute. The resulting layer would be as much as 3 millimeter thick. तो यस लेयर बन यत अर्थस पे सा about 3 millimeter thick. 3 millimeter thick. शाबाश बेटा दबन इस ओजोन it dissipates. Ozone is being formed and photo dissociated. Ozone hasa chu banan to be chu break ti gasan and it dissipates the energy of ultraviolet radiations. O2 plus O. O2 plus O वापस क्या बनाए O3. मगर it utilizes the energy of ultraviolet radiations. It utilizes the energy of ultraviolet radiations. Ozone is being formed and photo dissociated, but it utilizes the energy of ultraviolet radiation. शाबाश बेटा ओजोन होल क्या गो ओजोन होल नस गो न जिगरा होल गसुन कत ओजोनस तेल क्या decrease in the thickness of ozone, decrease in the thickness of ozone, decrease in the thickness of ozone over a restricted area, over a restricted area. Decrease in the thickness of ozone over a restricted area. Decrease gasin kath mas thickness mas gasin decrease kan kis ozone layer kis thickness mas या ओजोन किस थिकनेस मज गसन डिक्रीज वन ओजोन लेयर यह गो होल गसन कह वन ओजोन लेयर डेप्लीशन या ओजोन होल और ओजोन लेयर डेप्लीशन इज द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन ओवर ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया बेटा दबन अर्थ रिसीव्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ रिसीव करन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन थ्री फॉर्म्स UVA रेडिएशंस बेटा ये 300 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंजस मज अल्ट्रावायलेट B रेडिएशंस बेटा अल्ट्रावायलेट B रेडिएशंस क्या सच अबाउट 280 to 315 नैनोमीटर दिखा इथे पर क्या सच अल्ट्रावायलेट C रेडिएशंस in the wavelength of about 100 to 280 nanometer. Earth receives ultraviolet radiations in three forms: UVA radiations 315 to 400, UVB radiations 280 to 315, and UVC radiations 100 to 280. But out of these, ultraviolet B radiations are most dangerous. Ultraviolet B radiations are most dangerous. But ये ultraviolet radiations क्या कर? What these ultraviolet radiations do? Then decrease in the thickness of ozone over a restricted area is called as ozone layer depletion or ozone hole. Ozone hole was first discovered by a team of researchers led by a British scientist Joseph Foreman in 1985. He also coined the term ozone hole. बेटा इसी ने ओजोन होल टर्म जो है प्रपोज की है. शाबाश. डिस्कवर किसने किया? जोसेफ फॉरमैन ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म ओजोन होल. बेटा अब ये होल कैसे होता है? अभी हम बेटा बात कर रहे थे अर्थ रिसीव्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन थ्री फॉर्म्स. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रेक करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दे आर CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. बेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये ब्रेक करता है. शाबाश. CFCl2 प्लस Cl क्या निकाला वहां से? बेटा क्लोरीन फ्री हुआ. ऐसे भी
CFCl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस CFCl प्लस Cl। शाबाश बेटा, ये क्लोरीन हो गया बेटा। अब ये क्लोरीन जो फ्री होता है Cl प्लस O3 ओजोन के साथ रिएक्ट होता है। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट होता है बेटा, ये बनाता है ClO प्लस O2, ClO प्लस O2। शाबाश बेटा। इसके बाद ये ऐसा भी कर सकता है ClO प्लस O3 गिव्स Cl प्लस ट्वाइस O2। यानी कि बेटा ये भी CFCl3 जो है इट ब्रेक्स, यहां क्या रिलीज क्या होता है क्लोरीन, या रिलीज होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन फिर किसके साथ कंबाइन होता है ओजोन के साथ, और बेटा ये डिस्ट्रॉय करता है, ये ब्रेक करता है किसको, इस ओजोन को ब्रेक करता है बेटा यहां पे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बेटा ये क्लोरीन जो है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, विद द रिजल्ट बेटा ये जो ओजोन था ये ब्रेक हो गया। यहां पे आप देखिए, या ऐसे बेटा देखिए ClO प्लस O3, तो यहां पे क्या हुआ क्लोरीन फिर से फ्री हो गया और बेटा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने बनाया। अब ये ऑक्सीजन जब बेटा क्लोरीन फ्री हुआ ये दूसरे ओजोन के साथ रिएक्ट होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा। दस इट रिजल्ट्स इन शाबाश क्या डिप्लीशन ऑफ ओजोन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन करता है। शाबाश बेटा। जब ये ऐसे ही बेटा NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O3 ओजोन बेटा इट गिव्स राइज शाबाश ClO, इट गिव्स राइज NO2 प्लस O2। नाइट्रिक ऑक्साइड भी बेटा ब्रेक करता है ओजोन को। दिस इज कॉल्ड एज बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन होल इसी से होता है। इससे डिक्रीज क्या होता है, थिकनेस ऑफ ओजोन डिक्रीज होती है, विद द रिजल्ट वी कॉल इट एज ओजोन होल। बेटा ये जो ओजोन होल है ये दीज रिएक्शंस वर डिस्कवर्ड बाय मैरिया मोलिना एंड शरवुड रोलैंड इन 1995। Nobel Prize in Chemistry were awarded to Professor Paul Crutzen, Professor Sherwood Rowland and Professor Maria Molina for their discoveries of the destruction। बेटा इनने ये रिएक्शंस डिस्कवर किए और इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1995 में। किसको, प्रोफेसर पॉल क्रूटजन, शरवुड रोलैंड एंड मैरिया मोलिना फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन क्या होता है, ब्रेक होता है किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। बेटा it has been observed, it has been reported that a single atom of chlorine destroys 1 lakh molecules of ozone। एक क्लोरीन एटम जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेटा ऐसे ही ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक सिंगल मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। शाबाश बेटा। अब यहां पे क्वेश्चन है व्हाट आर देन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विद द ओजोन। बेटा यहां पे क्लोरीन रिएक्ट हुआ किसके साथ, ओजोन के साथ, और इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। आर दोज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस that react with the ozone and destroy the same and destroy them, और इनको डिस्ट्रॉय करता है वो मॉलिक्यूल जो ओजोन के साथ रिएक्ट होते हैं और फिर इस ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और इनमें बेटा जो अहम है वो है CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFClS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
etc. The gases responsible for ozone layer depletion are the chlorofluorocarbons, nitrogen oxide, sulfur dioxide, halon, carbon tetrachloride, etc. अब बेटा ओजोन होल किसको कहते हैं? डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन ओवर ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया इज कॉल्ड एज ओजोन होल. डिक्रीज इन द थिकनेस, थिकनेस में कमी होना, इसी को ओजोन होल कहते हैं. अब बेटा इसके इफेक्ट्स क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन होल? बेटा जो अहम इफेक्ट है वो है कोर्निया. जो आई होती है ना, इसमें कोर्निया होता है पार्ट. कोर्निया एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस. जो कोर्निया होता है ये क्या एब्जॉर्ब करता है? कोर्निया एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस. कोर्निया एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस. दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज सुनो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट. सुनो ब्लाइंडनेस, सुनो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट, सुनो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट इसको कहते हैं. दिस लीड्स टू, इसे क्या होता है जब ये कोर्निया एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसको बोलते हैं सुनो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट. दिस लीड्स टू, शाबाश, इससे क्या होता है? फोटो बर्निंग, जलन जैसी. फोटो बर्निंग ऑफ आई, कोर्निया, फोटो बर्निंग. शाबाश बेटा, इससे फोटो बर्निंग, डिमिनिशिंग ऑफ आई साइट, आई साइट कम होती है, एंड लेटर परमानेंट डैमेज टू आई, और इसके बाद परमानेंट डैमेज आई को होता है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से. क्यों? ये क्यों यहाँ पे ज्यादा आते हैं? क्योंकि ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम हो गई. अब यहाँ पे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पेनिट्रेट होते हैं, इससे कोर्निया ऑफ द आई डैमेज होती है, व्हिच इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट. फिर क्या होता है? फोटो बर्निंग, डिमिनिशिंग ऑफ आई साइट, एंड लेटर परमानेंट डैमेज टू आई विदाउट इंडिविजुअल नोइंग अबाउट इट. और इंडिविजुअल को पता भी नहीं चलेगा, इसकी जो रोशनी होती है वो चली जाएगी. और इसी के साथ बेटा it has been observed that increase in the concentration of these ultraviolet radiations. जब ultraviolet radiations ज्यादा penetrate होगी, near about 2,50,000 more persons will catch skin cancer. कितने skin cancers ज्यादा होंगे? 2,50,000 more skin cancers. and और बेटा साथ ही about 5 लाख इनमें से ब्लाइंड होते हैं. शाबाश बेटा. प्रोफेसर पॉल क्रूटजन, जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो क्रूटजन था, प्रोफेसर पॉल क्रूटजन, बेटा वो कहता है ए 1% डिक्रीज इन ओजोन. अगर 1% डिक्रीज हो गया, ओजोन लेयर की थिकनेस 1% डिक्रीज हो गई, इट रिजल्ट्स इन 1 मिलियन ह्यूमन कैंसर्स. 1 मिलियन ह्यूमन कैंसर्स होगा, बिसाइड्स दैट व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जो इस वक्त है, इसके अलावा अगर 1% अब डिक्रीज हुआ थिकनेस ऑफ ओजोन में, तो इससे 1 मिलियन ह्यूमन कैंसर और होगा. यानी कि जितना है इसके अलावा 1 मिलियन और होगा. और ऐसे बेटा एस्टिमेट किया जाता है, अब अगर 10% डिक्रीज हो गया, ओजोन थिकनेस 10% डिक्रीज हो गया, तो इससे 20 to 30% क्या होगा? 20 to 30% इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर्स. इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर्स. बेटा these ultraviolet radiations cause blood vessels near the skin surface to carry more blood. जो स्किन सरफेस पे वेन्स होते हैं, जब इन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेगी, इससे क्या होता है? इट कॉजेज स्किन टू वेन्स और ब्लड टू कैरी मोर ब्लड. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस near the blood surface, near the body surface or blood vessels carry more blood due to ultraviolet radiations. और इससे क्या होगा बेटा? ये जो स्किन होगा, इट बिकम्स हॉट, गर्म होगा स्किन, स्वोलन होगा, एंड लेटर इट में फॉर्म सनबर्न्स, और सनबर्न्स भी होंगे. शाबाश बेटा. ऐसे ही ये जो फिशेस है, फिश अगर कंसंट्रेशन 0.1 to 1.0 होगी ना ppm या डॉब्सन यूनिट्स, और इससे क्या होगा बेटा? it becomes difficult or it becomes prone or fatal to fishes. बेटा अगर फिशेस को बहुत कम कंसंट्रेशन में भी ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पेनिट्रेट होंगे, तो इससे क्या, इतना ओजोन कंसंट्रेशन अगर 0.1 और 1.0, जिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की कंसंट्रेशन अगर इतनी पहुंची किन में, वाटर बॉडीज में, इससे फिशेस को डैमेज होगा. इट डैमेजेस और इट
causes mutation किसमें, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए एंड आरएनए, बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ये होता है मेटाबॉलिक चेंजेस, जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स है उनमें चेंजेस होती है विद ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्यों आती है यहाँ पे, क्योंकि ओजोन की थिकनेस कम होती है, फिर यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज करता है। बेटा ऐसे ही इट कॉजेज पेन एंड चेस्ट कॉफ, पेन एंड चेस्ट कॉफ होता है। ओजोन बेटा क्या करता है, चेस्ट कफ होती है इससे, पेन होती है इससे। बेटा ऐसे ही ये ओजोन जो है, प्लांट प्रोटीन जो है, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन होता है इससे, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ओजोन लेयर क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन करता है। बेटा ऐसे ही ये देखा गया है राइस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से 13 to 70% डिक्रीज होता है क्रॉप यील्ड। इन राइस द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस 13 to 17% ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। एम्बेस्ट एंड अग्रवाल कहता है बेटा, एम्बेस्ट एंड अग्रवाल 1978। बेटा ऐसे ही इट इज 1997। बेटा 1998 में बेटा एडम्स ने 1998 में एडम्स ने एस्टिमेट किया, एडम्स क्रॉप यील्ड जो है वो लॉस होता है $3 बिलियन। $3 बिलियन का नुकसान होता है क्रॉप यील्ड में, किसमें, क्रॉप यील्ड में, ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। बेटा इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन यूएसए एवरी ईयर अबाउट 7,000 पीपल डाई ड्यू टू सच डिजीजेस, यूजुअली कैंसर से ऑलमोस्ट 7,000 डेथ्स होती है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हुई है और इससे अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं और ये इफेक्ट करता है ह्यूमंस को और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो भी है उनको इफेक्ट करता है। दैट इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, थैंक्स।